جو اسرائیل ہے نا، اسرائیل وہ کیسے بنا اور کیا لڑائی ہے نا وہ اب سمجھ میں آئے گی. اسٹارٹنگ سے بتایا گیا یہ کہ کیسے بنا اسرائیل، اور اسرائیل میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ، اور فلسطین کا کیوں لڑائی کیوں ہے، پیچھے کی کیا فلسفی ہے، ان دونوں ملکوں کی کیا فلسفی ہے، اور کیوں ادھر لڑائی اتنی جنگیں ہو رہی ہے، اس بارے میں ویڈیو. ٹھیک ہے، تو یہ اسٹارٹنگ سے بتایا کہ بالکل جو اتہاس میں جیسے ہے، تاریخ میں جیسے لکھا وہاں سے لے کے اب تک. ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ پوری دنیا میں بدنام ہونے کے بعد You keep sending billions of dollars to Israel. Shame on you all! Shame on you! امریکہ آخر کیوں اسرائیل کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا؟ I love Israel. I love Israel. The United States of America would have to invent an Israel. ایسا لگتا ہے لیلا مجنو اور رومیو جولیٹ کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی لو سٹوری پوری دنیا یاد رکھے گی. Bond between our two countries is unbreakable. The eternal friendship relationship is very important. We are you and you are us. لیکن یہ دوستی ہمیشہ سے ایسے نہیں تھی، بلکہ دنیا میں ایک وقت ایسا تھا کہ جب یہودی اور کرسچن ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے. یہ پوری کہانی ایک ہی انسان کے ساتھ شروع ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام. آج سے 2000 سال پہلے جب دنیا کے سارے یہودی فلسطین کے علاقے میں رہتے تھے، یہاں ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، کیونکہ فلسطین پر ایک بہت بڑی سپر پاور رومن ایمپائر کا راج تھا، جنہوں نے یہودیوں کو بالکل غلاموں کی طرح رکھا ہوا تھا اور ان پر بہت سخت ظلم کیا کرتے تھے. رومن ایمپائر کے اس ظلم کو دیکھ کر یہودی اسکالرز کو سمجھ آ گئی کہ اب تورات میں بتائی گئی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور وقت آ چکا ہے کہ یہودیوں کو بچانے کے لیے دنیا میں ان کا مسیحا آئے. اب یہودی اسکالرز کا یہ خیال تھا کہ جب یہ مسیحا آئے گا وہ سب سے پہلے یہودی اسکالرز کے ساتھ ہاتھ ملائے گا، انہیں شاباشی دے گا اور ان کا دوست بنے گا. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. عیسیٰ علیہ السلام بار بار لوگوں کو جمع کر کے ان یہودی اسکالرز کے خلاف بولنے لگے اور لوگوں کو یہ سمجھانے لگے کہ آج ہمارے ریلیجن کو ان یہودی اسکالرز نے بگاڑ دیا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی انہی باتوں کی وجہ سے یہودی اسکالرز ان سے نفرت کرنے لگے اور رومن ایمپائر کے ساتھ مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی سازش کرنے لگے. ایسا ہوا تھا، یہودی اسکالرز نے رومن ایمپائر پر بہت پریشر ڈالا کہ وہ کسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو موت کی سزا سنا دے، جس پر رومن ایمپائر کے گورنر نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس شخص کو موت کی سزا تو سنا دیں گے، لیکن یاد رکھنا عیسیٰ کا خون ہم رومنز پر نہیں، تم یہودیوں پر ہوگا. یہ سن کر یہودیوں نے انہیں کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، عیسیٰ کا خون ہم پر اور ہماری نسلوں پر ہوگا. اب عیسیٰ علیہ السلام تو یہودیوں کی سازش سے بچ گئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد یہودی کبھی بھی فلسطین میں چین سے نہیں رہ سکے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے کچھ ہی عرصے بعد رومن ایمپائر اور یہودیوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ جس میں رومن ایمپائر نے یہودیوں کو بالکل کچل دیا اور ہزاروں یہودیوں کو مار کر جروسلم میں یہودیوں کی سب سے ہولی جگہ دی سیکنڈ ٹیمپل کو گرا دیا اور سارے یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے فلسطین سے بھگا دیا، جس کے بعد مجبوراً یہودی فلسطین کو چھوڑ کر پوری دنیا میں پھیل گئے. اور اگلے 500 سال تک دنیا کے ہر یہودی کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح دنیا میں کوئی میریکل ہو اور یہودی واپس فلسطین کی طرف جا سکے. اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا. یہودیوں کے فلسطین سے نکلنے کے 500 سال بعد دنیا میں ایک نئی ریاست بنی، مدینہ کی ریاست. اللہ اکبر. مسلمانوں کی یہ خلافت کچھ ہی سالوں میں اتنی تیزی سے پھیلی کہ خلیفہ عمر بن خطاب کے دور میں مسلمانوں نے رومن ایمپائر کی کمر بالکل توڑ دی اور ان سے فلسطین اور جروسلم فتح کر لیا. جروسلم سرنڈر کرنے سے پہلے رومن ایمپائر کے کرسچنز نے حضرت عمر کے سامنے ایک ہی شرط رکھی کہ آپ کسی بھی حال میں یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت نہ دیں. لیکن حضرت عمر نے ان کی بات نہیں مانی اور یہودیوں کو بھی جروسلم آنے کی اجازت دی، جسے ہم پورا ایکسپلین کر چکے. حضرت عمر کے اس آرڈر کے بعد اگلے 400 سال تک دنیا کے یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کے بہت ہی اچھے دوست تھے اور کرسچنز ان کے دشمن تھے. لیکن 400 سال تک فلسطین پر حکومت کرنے کے بعد فلسطین کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین لیا گیا. ہوا یہ کہ یورپ میں ایک نیا پوپ آیا
पोप अर्बन। ये एक बहुत ही खतरनाक पोप था जिसने आते ही यूरोप की आवाम और बादशाहों को मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ने का हुक्म दिया ताकि क्रिश्चियंस मुसलमानों से अपनी होली सिटी जेरूसलम दोबारा छीन सके। जिसके बाद यूरोप के क्रिश्चियंस ने मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। लेकिन यहाँ मसला ये था, उस वक्त के मुसलमान बादशाह अपनी अयाशियों में और आपस की जंगों में इतना मसरूफ थे कि वो क्रिश्चियंस की इस फौज से नहीं लड़ सके। इसीलिए क्रिश्चियंस ने बहुत ही आसानी से पूरे फलस्तीन पर कब्जा कर लिया और बहुत ही बेदर्दी से मुसलमानों को मारने लगे। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा था कि मस्जिद अक्सा में पाँव रखने की जगह भी नहीं थी क्योंकि वो मुसलमानों की लाशों से भरी हुई थी। अब क्रिश्चियंस की जंग तो मुसलमानों के साथ थी, लेकिन वो मुसलमानों से ज्यादा नफरत यहूदियों से करते थे क्योंकि इन्हीं यहूदियों ने बहुत साल पहले क्रिश्चियंस के खुदा जीसस क्राइस्ट को मारने की साजिश की थी। तो क्रिश्चियंस मुसलमानों को मारने के साथ साथ यहूदियों का भी पीछा करने लगे, जिसे देखकर यहूदियों के बच्चे और औरतें इन क्रिश्चियन से भागकर अपने टेम्पल्स और सिनेगॉग्स में छुप गए। और जैसे ही क्रूसेडर्स को इसका पता चला, उन्होंने यहूदियों की इन सारी बिल्डिंग्स को आग लगा दी और हजारों यहूदियों को जिंदा जला दिया। जिसके बाद अगले 90 इयर्स तक मुसलमान फलस्तीन को दोबारा फतह नहीं कर सके। आखिर दुनिया में मुसलमानों का एक नया लीडर आया, सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्होंने दुनिया के मुसलमानों को दोबारा यूनाइट करके फलस्तीन पर एक बार फिर हमला किया। और इस हमले में दुनिया के सारे यहूदियों ने मिलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को सपोर्ट किया। यहां तक कि दुनिया के सबसे बड़े यहूदी स्कॉलर मैमोनिडीज, one of the greatest Jewish scholars of all time, सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ इस जंग में शामिल थे और उनके पर्सनल डॉक्टर थे। जिसके बाद सलाहुद्दीन ने ऑफ कोर्स फलस्तीन को दोबारा फतह किया और इस तरह एक बार फिर मुसलमान और यहूदी अमन और सुकून के साथ रहने लगे। और सिर्फ फलस्तीन में नहीं बल्कि दुनिया में जहां भी मुसलमानों की हुकूमत थी, यहूदी वहां बहुत ही इज्जत की जिंदगी गुजारते थे और हमेशा क्रिश्चियन से दूर रहने की कोशिश करते थे। दुनिया के सबसे ताकतवर यहूदी फलस्तीन में नहीं बल्कि मुसलमानों की एक दूसरी हुकूमत उंदलस स्पेन में थे। स्पेन एक जमाने में मुसलमानों का सबसे रिच और ताकतवर इलाका था, जहां मुसलमानों की 800 साल से हुकूमत थी और मुसलमानों से स्पेन छीनना इम्पॉसिबल था। लेकिन 800 साल के बाद एक बार फिर यूरोप के क्रिश्चियन लीडर्स ने मिलकर मुसलमानों के स्पेन पर हमला कर दिया और आखिर मुसलमानों से पूरा स्पेन छीन लिया। उंदलस स्पेन को फतह करने के बाद क्रिश्चियन लीडर्स ने मुसलमानों और यहूदियों को दो ऑप्शंस दिए, या तो अपने रिलीजन्स को छोड़कर क्रिश्चियन बनो और या स्पेन को छोड़कर हमेशा के लिए यहां से निकल जाओ। तो ऑफ कोर्स अपना रिलीजन तो मुसलमानों और यहूदियों ने नहीं छोड़ना था। तो अब ये सब कंफ्यूज थे कि स्पेन को छोड़कर कहां जाए। ये देखकर उस वक्त के उस्मानिया सल्तनत के बादशाह सुल्तान बयाज़िद ने मुसलमानों और यहूदियों को दावत दी कि वो स्पेन को छोड़कर उस्मानिया सल्तनत की तरफ आए, जहां उस्मानिया सल्तनत के बादशाह उनका अच्छा ख्याल रखेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर दुनिया के मुसलमान और यहूदी अभी सिर्फ 500 साल पहले तक एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त थे, तो फिर दरमियान में ऐसा क्या हुआ कि यहूदी और क्रिश्चियंस एक साथ मिलकर मुसलमानों के दुश्मन बन गए? ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ ही अरसे बाद जब कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर की, आहिस्ता आहिस्ता यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी। ये देखकर मुसलमान इलाकों में रहने वाले यहूदी भी पहली बार यूरोप की तरफ शिफ्ट होने लगे, जहां उन्होंने एक बहुत ही सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन इल्यूमिनाटी बनाई और फिर शैतान और जिन्नात के साथ मिलकर काला जादू करके बहुत सारा पैसा बनाया और फिर इन पैसों से पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सब बस कहानियां हैं। अगर जादू से पैसे बनने होते तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क नहीं बल्कि कोई बाबा होता। लेकिन अगर जादू और जिन्नात से यहूदियों ने मदद नहीं ली, तो फिर कैसे यहूदियों ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में लिया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब यहूदी मुसलमान इलाकों को छोड़कर आहिस्ता आहिस्ता यूरोप की तरफ शिफ्ट होने लगे, वहां यूरोप के क्रिश्चियंस अब भी
यहूदियों से सख्त नफरत करते थे। इसीलिए इन यहूदियों को कंट्रोल में रखने के लिए यूरोप के क्रिश्चियंस ने एक कानून बनाया कि यहूदी यूरोप में रह तो सकते हैं लेकिन यूरोप की जमीनें नहीं खरीद सकते, और साथ ये भी कहा कि यहूदी यूरोप की पॉलिटिक्स और फौज से हमेशा दूर रहेंगे। तो ऑफ कोर्स अब यहूदियों के पास यूरोप में सिर्फ एक ही काम बचा था, बिजनेस। जिसके बाद यूरोप के सारे यहूदी बड़े बड़े ट्रेडर्स और बिजनेसमैन बनने लगे। इस तरह यहूदियों के पास आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारा पैसा जमा हो गया। लेकिन अब मसला ये था कि यहूदी इस सारे पैसे के साथ कोई भी जमीन नहीं खरीद सकते थे और क्रिश्चियंस के सारे पैसे जमीनें खरीदने में खर्च हो जाते थे। तो अब यूरोप में आहिस्ता आहिस्ता ऐसी सिचुएशन बनी कि क्रिश्चियंस का सारा पैसा जमीनों में बंद होने की वजह से उनके पास कोई कैश नहीं होता था, और ऑन दी अदर हैंड यहूदी यूरोप में कोई जमीन नहीं खरीद सकते थे, इसीलिए उनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा होता था। जिसके बाद यहाँ से क्रिश्चियंस यहूदियों से सूद पर कर्जे लेने लगे। अब यहूदियों के रिलीजन में भी सूद पर कर्जा देना हराम है, लेकिन सिर्फ आपस में एक दूसरे को, बाकी रिलीजन के लोगों के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए यहूदी भर भर कर यूरोप के क्रिश्चियंस को सूद पर कर्जे देने लगे। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि यूरोप के बड़े बड़े बादशाह भी यहूदियों से कर्जे लेने लगे। उस जमाने में यहूदियों से सूद पर कर्ज लेना इतना आम हो चुका था कि एक फेमस राइटर विलियम शेक्सपियर ने अपनी नॉवेल्स में यहूदियों से सूद पर कर्ज लेने का जिक्र किया है। आखिर यहूदियों ने इस सूद के निजाम से इतना पैसा बनाया कि वो यूरोप के हर शहर में छोटे छोटे बैंक्स बनाने लगे। लेकिन अब जब यूरोप में यहूदी अपनी पावर की पीक पर थे, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला हुआ। जब भी यूरोप का कोई बादशाह यहूदियों को उनका कर्ज वापस नहीं कर सकता था, तो वो अपने इलाके के सारे यहूदियों को मारकर वहाँ से भगा देता था, जिससे यहूदियों का बिजनेस काफी खराब हो रहा था। तो अब यहूदी सोचने लगे कि अब उन्हें इन छोटे छोटे बैंकों के बजाय एक सेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल बैंक की जरूरत है। और ऐसा ही हुआ। आखिर जर्मनी के एक ताकतवर यहूदी ने दुनिया का पहला इंटरनेशनल बैंक बनाया, और इस यहूदी का नाम था मायर रॉथस्चाइल्ड। रॉथस्चाइल्ड का बैंक कुछ ही सालों में इतना ताकतवर बना कि उसने अपने 5 बेटों को यूरोप के हर सिटी की तरफ भेजा और उन सबको हुक्म दिया कि यूरोप के हर कैपिटल सिटी में जाकर वहां का सबसे बड़ा बैंक बनाओ। ये दुनिया का पहला इंटरनेशनल बैंक था, और इसका फायदा ये था कि यूरोप की हर बड़ी सिटी में होने की वजह से यूरोप का कोई भी बादशाह इनका बिजनेस खत्म नहीं कर सकता था, क्योंकि जब भी कोई एक भाई कमजोर होता था, उसके बाकी सारे भाई मिलकर उसे बचा लेते थे। इस रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास इतना पैसा था कि उस वक्त की स्पेनिश एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर सब इन्हीं के पैसों से चलती थी। लेकिन रॉथस्चाइल्ड फैमिली को अपनी असल ताकत तब मिली जब यूरोप में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई। इस जंग को फ्रांस का एक बहुत बड़ा बादशाह नेपोलियन लीड कर रहा था। नेपोलियन की ताकत पूरे यूरोप में बहुत तेजी से फैल रही थी, लेकिन नेपोलियन को सबसे बड़ा नुकसान तब पहुंचा जब रॉथस्चाइल्ड के 5 भाइयों ने नेपोलियन को नहीं बल्कि ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट किया, जिसके बाद ब्रिटिश एम्पायर ने रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पैसों से नेपोलियन को हरा दिया। इस जंग में रॉथस्चाइल्ड के पास इतनी ताकत थी कि कहा जाता है यूरोप में कुछ भी हो, उसकी सबसे पहले खबर रॉथस्चाइल्ड फैमिली तक पहुंचती थी, और फिर वो इस खबर को ब्रिटिश एम्पायर के बादशाह तक पहुंचाते थे। और इस तरह रॉथस्चाइल्ड की मदद से ब्रिटिश एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनी। अब यहूदी यूरोप में अपनी ताकत की पीक पर थे। यूरोप की सारी बड़ी जॉब्स यहूदियों के पास थी। यूरोप के सबसे पढ़े लिखे लोग भी यहूदी थे, और यूरोप की सारी इकोनॉमी का कंट्रोल भी यहूदियों के पास था। तो अब यहूदी आहिस्ता आहिस्ता सोचने लगे कि 2000 साल पहले हम कमजोर थे, इसीलिए रोमन एम्पायर ने हमें फलस्तीन से निकाल दिया था, लेकिन अब हम अपनी ताकत की वजह से दोबारा फलस्तीन में जाकर आबाद होंगे, और यहां से दुनिया में पहली बार सीक्रेट ज़ायनिज्म शुरू हुआ। 40,000 यहूदी पूरी दुनिया से फलस्तीन की तरफ छुप छुप कर शिफ्ट होना शुरू हुए, और वहां के गरीब अरबों से डबल ट्रिपल प्राइस पर फलस्तीन की जमीनें खरीदने लगे। इन जमीनों को खरीदने में यहूदियों की सबसे बड़ी मदद वही रॉथस्चाइल्ड फैमिली कर रही थी। यहूदी फलस्तीन की मेन जगहें नहीं बल्कि बिल्कुल खाली और बंजर जमीनें खरीद रहे थे। इसीलिए फलस्तीन के अरब भी खुशी से ट्रिपल प्राइस पर यहूदियों को ये जमीनें बेचने लगे। यहूदियों ने फलस्तीन में अपनी सबसे बड़ी जमीन अहूजात बईत में खरीदी,
جو بالکل ایک خالی اور بنجر علاقہ تھا، لیکن آج اسی خالی علاقے کو اسرائیل کا کیپٹل تل اویو کہا جاتا ہے، جو آج دنیا کی سب سے ایڈوانس سٹیز میں سے ایک ہے۔ یہ دیکھ کر پوری دنیا سے اور بھی زیادہ یہودی فلسطین میں آباد ہونے لگے، جس کے بعد یہودیوں نے اپنی ہیبرو زبان میں فلسطین میں نیوز پیپرز، ریڈیو اور ٹی وی کے شوز شروع کیے، اور اس طرح آخر 2000 سال بعد فلسطین کی زمین پر ہیبرو زبان دوبارہ سنائی دینے لگی۔ اب تک یہودی یہ سب کچھ اکیلے کر رہے تھے، لیکن یہاں سے ان کو دنیا میں اپنا سب سے اچھا دوست ملا، امریکہ کے ایوانجیلیکل کرسچنز۔ God gave them that land. They owned that land. اچانک امریکہ میں ایک کتاب لکھی گئی، جیزس از کمنگ، جس میں دنیا کے کرسچنز کے لیے ایک بہت بڑا میسج تھا کہ میرے کرسچن بھائیوں جاگ جاؤ، کیونکہ بہت جلد دنیا میں جیزس واپس آنے والا ہے، اور جیزس دنیا میں تبھی واپس آئیں گے جب فلسطین میں یہودیوں کا اپنا ملک ہوگا۔ اس کتاب نے امریکہ کے سارے ریکارڈز توڑ دیے اور چھپتے ہی ملینز آف کاپیز بھیجی، اور پورے امریکہ کے کرسچنز کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جیزس تبھی واپس آئیں گے جب فلسطین میں اسرائیل کا اپنا ملک ہو۔ یہ بک اتنی فیمس تھی کہ امریکہ کے لوگوں نے مل کر اس وقت کے پریزیڈنٹ کی طرف لیٹر بھی لکھا کہ پلیز فلسطین میں اسرائیل کا ملک بنائیں۔ اب جب امریکہ کی عوام کا سپورٹ یہودیوں کے پاس تھا، آخر زائنسٹ دنیا کے سامنے آئے اور سوئٹزرلینڈ میں اپنی پہلی میٹنگ کی، جس میں زائنزم کے لیڈر تھیوڈور ہرزل نے پوری دنیا کے سامنے آ کر کہا کہ میں آج ایسی بات کرنے جا رہا ہوں جس پر مجھے پتا ہے تم سب مجھ پر ہنسو گے۔ فلسطین میں 2000 سال بعد یہودیوں کا اپنا ملک ہوگا، جو آف کورس ایک امپاسبل بات تھی، لیکن تھیوڈور نے کہا کہ یاد رکھنا آج سے 50 سال بعد میری یہ بات پوری ہو کر رہے گی۔ یہ اتنی زبردست پریڈکشن تھی کہ اس میٹنگ کے ایگزیکٹلی 50 سال بعد اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی۔ زائنسٹ اپنے اس مشن میں اتنے کمیٹڈ تھے کہ انہوں نے اسی میٹنگ میں پہلی بار اسرائیل کا جھنڈا بھی پبلش کیا۔ اس میٹنگ کے کچھ ہی عرصے بعد تھیوڈور نے 2 لوگ فلسطین کی طرف بھیجے تاکہ وہ چھپ چھپ کر جروسلم کے حالات ان تک پہنچا سکے، جنہوں نے جروسلم سے واپس تھیوڈور کی طرف ایک سیکرٹ میسج بھیجا کہ دلہن مطلب جروسلم ہے تو بہت خوبصورت، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی اور کی بیوی ہے، کیونکہ فلسطین پر اس وقت کسی اور کی نہیں بلکہ عثمانیہ خلافت کی حکومت تھی، اور اس کے خلیفہ سلطان عبدالحمید ایک بہت ہی سخت انسان تھا۔ اسی لیے تھیوڈور ہرزل سیدھا عثمانیہ خلیفہ سے ملنے پہنچے اور ان کو ایک آفر دی کہ ہم زائنسٹ عثمانیہ سلطنت کا بہت بڑا قرضہ اتار دیں گے اگر سلطان عبدالحمید فلسطین کا علاقہ یہودیوں کو دے دے۔ لیکن سلطان عبدالحمید نے تھیوڈور کو جواب دیا کہ اگر تم لوگ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کرو نا، میں فلسطین تم لوگوں کے حوالے کبھی نہیں کروں گا۔ اور یہاں سے عثمانیہ سلطنت اور زائنسٹ کی لڑائی شروع ہوئی۔ اب زائنسٹ سیدھا جا کر اپنے پرانے دوست برٹش امپائر سے اپنے ملک کی بھیک مانگنے لگے۔ اب فلسطین میں یہودی ملک بننا تو امپاسبل تھا، اسی لیے برٹش امپائر نے زائنسٹ کو 2 آفرز دی کہ تم لوگ فلسطین کو چھوڑ کر یوگانڈا اور ارجنٹینا میں سے کوئی بھی علاقہ چوز کرو اور وہاں اپنا ملک بناؤ۔ لیکن یہودیوں نے برٹش امپائر سے کلیئرلی کہا کہ جس طرح جرمنی میں جرمنز، فرانس میں فرینچ اور انگلینڈ میں انگلش لوگ رہتے ہیں، اسی طرح یہودی بھی دنیا میں ایک ہی جگہ فلسطین میں ہی رہیں گے۔ دنیا کے سارے زائنسٹ مل کر کوشش کرنے لگے کہ کسی طرح اب عثمانیہ سلطنت کو گرا دیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ ہی عرصے بعد دنیا کی سب سے بڑی جنگ شروع ہوئی، ورلڈ وار 1۔ اینڈ آف کورس ورلڈ وار شروع ہوتے ہی برٹش امپائر ایک بار پھر اپنے پرانے دوست روتھشائلڈ فیملی کی طرف مدد کے لیے دیکھنے لگے، اور انہیں خوش کرنے کے لیے برٹش امپائر نے روتھشائلڈ فیملی سے وعدہ کیا کہ اگر اس ورلڈ وار کے بہانے سے ہم نے فلسطین عثمانیہ خلافت سے چھین لیا تو وہاں ہم آپ کے لیے اسرائیل کا نیا ملک بنائیں گے۔ جس کے بعد آف کورس پوری دنیا کی یہودی
ब्रिटिश एम्पायर के साथ खड़े हो गए और ब्रिटिश एम्पायर ने आसानी से फलस्तीन उस्मानिया खिलाफत से छीन लिया और जेरूसलम जैसी होली सिटी फतह करने के बाद ब्रिटिश एम्पायर के फॉरेन मिनिस्टर आर्थर बेलफोर ने दुनिया के सबसे ताकतवर यहूदी वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड की तरफ एक लेटर भेजा जिसमें उसने क्लियरली कहा कि ब्रिटिश एम्पायर अपनी फुल ताकत के साथ इजराइल का मुल्क बनाने की कोशिश करेगी। अब बेलफोर खुद तो एक क्रिश्चियन था, लेकिन वो इस सबसे कई साल पहले लिखी जाने वाली किताब जीसस इज कमिंग से बहुत इंस्पायर था। लेकिन अब मसला ये था कि जब ब्रिटिश एम्पायर ने 1917 में इजराइल की रियासत बनाने का ऐलान किया, उस वक्त फलस्तीन में सिर्फ 10% यहूदी थे और बाकी 90% मुसलमान थे, जिससे रॉथस्चाइल्ड और बाकी ज़ायनिस्ट को समझ आ गई कि अगर हम इजराइल की रियासत बनाना चाहते हैं तो हमें फलस्तीन में अपनी आबादी बढ़ानी होगी। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पूरी दुनिया से यहूदी फलस्तीन की तरफ तेजी से शिफ्ट होने लगे। नाउ जिस तरह बहुत साल पहले ब्रिटिश एम्पायर ने रॉथस्चाइल्ड फैमिली की मदद से नेपोलियन को हराया था, अब उन्होंने उसी रॉथस्चाइल्ड की मदद से वर्ल्ड वॉर 1 में उस्मानिया खिलाफत और जर्मनी को बिल्कुल तोड़ दिया था, जिसके बाद ब्रिटिश एम्पायर तो वर्ल्ड वॉर जीतने का जश्न मना रही थी। लेकिन जर्मन अवाम को समझ आ गई थी कि इस जंग में किसने और कैसे उनके साथ बगावत की। असल में इस सबसे बहुत साल पहले रॉथस्चाइल्ड बिजनेस जर्मनी से ही शुरू हुआ था, लेकिन अब जब वर्ल्ड वॉर का टाइम आया तो रॉथस्चाइल्ड जर्मनी को छोड़कर ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट कर रहे थे, जिससे आहिस्ता आहिस्ता जर्मन अवाम में यहूदियों के लिए गुस्सा बढ़ने लगा और यहाँ से दुनिया में एक नए लीडर की एंट्री होती है, एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने आते ही जर्मन अवाम को ये बात समझाने की कोशिश की कि हम तो वर्ल्ड वॉर जीतने वाले थे, सिर्फ इन यहूदियों की गद्दारी की वजह से हम ये जंग बेशर्मी से हार गए। हिटलर जब भी स्पीच करता था उसकी बातें और स्टाइल ऐसा होता था कि जर्मनी का बच्चा बच्चा उसकी हर बात पर यकीन करता था, जिसके बाद हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के सारे बिजनेसेस बंद कर दिए और इवन जर्मनी में रॉथस्चाइल्ड का सबसे पहला बैंक, 200 साल पुराना बैंक, बंद कर दिया। हिटलर की फौज आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूरोप को फतह करने लगी और यूरोप की हर सिटी में जाकर वहां के यहूदियों को मारने लगे। ये देखकर यूरोप के सारे यहूदी हिटलर से अपनी जान बचाकर भागने लगे और इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके रॉथस्चाइल्ड के बाकी भाइयों ने इन सारे यहूदियों को फलस्तीन की तरफ भेजना शुरू किया और फलस्तीन में एक बार फिर यहूदियों की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने लगी। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, फलस्तीन में सिर्फ 10% यहूदी थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद 30% से भी ज्यादा यहूदी थे। वर्ल्ड वॉर 2 तो ब्रिटिश एम्पायर ने जीत ली थी, लेकिन इस जंग में उनका इतना नुकसान हुआ था कि अब वो इस ग्रेट एम्पायर को और नहीं संभाल सकते थे। इसीलिए इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसी कंट्रीज ब्रिटिश एम्पायर से आजाद होने लगी। ये देखकर फलस्तीन के ज़ायनिस्ट भी ब्रिटिश एम्पायर को कहने लगे कि अब अपना वादा पूरा करो और यहाँ पर एक यहूदी रियासत बनाओ। लेकिन मसला ये था कि अब भी फलस्तीन में सिर्फ 30% यहूदी थे और बाकी सारे मुसलमान थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश एम्पायर इतनी जल्दी इजराइल की रियासत बनाने के लिए तैयार नहीं थी। ये देखकर फलस्तीन के यहूदी और ज़ायनिस्ट अपने पुराने दोस्त ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ होने लगे और पहली बार ज़ायनिस्ट ब्रिटिश एम्पायर पर ही हमले करने लगे। अब एक ऐसी सिचुएशन थी कि मुसलमान और यहूदी सब ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे थे। इसीलिए ब्रिटिश एम्पायर ने आखिर तंग आकर फलस्तीन का मसला यूनाइटेड नेशंस के सामने पेश किया और कहा अब आप ही फैसला करें कि फलस्तीन के साथ क्या होना चाहिए। जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने आज तक अपनी हिस्ट्री का सबसे स्टूपिड फैसला किया। यूनाइटेड नेशंस ने फैसला किया कि फलस्तीन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। फलस्तीन का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ 33% आबादी वाले यहूदियों को दिया जाएगा और फलस्तीन के 66% मुसलमानों को फलस्तीन का छोटा सा हिस्सा दिया जाएगा और जेरूसलम को एक इंटरनेशनल सिटी बना दिया जाएगा। ये ऐसा ही है कि एक केक को 10 लोगों में डिवाइड कर दिया जाए, आधा केक 3 लोगों को और आधा केक बाकी 7 लोगों को दिया जाए, जो एक बहुत ही अनफेयर फैसला था। जब यूएन ने अपना ये फैसला ज़ायनिस्ट और फलस्तीन में मुसलमान कमेटी के सामने रखा तो ऑफ कोर्स यहूदी तो इस फैसले पर बहुत बड़ा जश्न मनाने लगे, लेकिन फलस्तीन की मुसलमान कमेटी ने यूएन के इस फैसले को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। मुसलमानों की इस कमेटी के हेड का नाम अमीन अल हुसैनी था, जो पूरे फलस्तीन का ग्रैंड मुफ्ती था। ब्रिटिश एम्पायर और ज़ायनिस्ट इस बंदे से पहले से ही नफरत करते थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में
इस ग्रैंड मुफ्ती ने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ जाकर जर्मनी के हिटलर को सपोर्ट किया था, बल्कि हिटलर के साथ पर्सनल मीटिंग्स भी की थी और इवन हिटलर के लिए एक मुसलमान आर्मी भी बनाना चाहता था। जैसे ही मुसलमानों ने यूएन के प्लान को रिजेक्ट किया, अचानक इजराइल के रॉथस्चाइल्ड स्ट्रीट पर ज़ायनिस्ट का लीडर दुनिया के सामने आया और कहा, मुसलमानों की इस ढिठाई की वजह से आज हम ये ऐलान करते हैं कि अब आधा फलस्तीन नहीं, पूरा फलस्तीन हमारा होगा। और इसी के साथ डेविड बेन गोरियन ने इजराइल की आजादी का ऐलान कर दिया। ये ऐलान उसने अपने ज़ायनिस्ट लीडर थियोडोर हर्ज़ल की बहुत बड़ी तस्वीर के नीचे किया था, जिसने इस दिन से एग्जैक्ट 50 साल पहले कहा था कि आज से 50 साल बाद दुनिया में इजराइल की रियासत बनेगी, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। इजराइल की आजादी के सिर्फ 11 मिनट बाद सुपर पावर अमेरिका ने इजराइल के मुल्क को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद सोवियत यूनियन और बाकियों ने भी ऐसा ही किया, जिनमें सिर्फ एक इस्लामिक कंट्री थी जिसने इजराइल को एक्सेप्ट किया, रजा शाह का ईरान। अब जब इजराइल के सारे यहूदी आजादी का जश्न मना रहे थे, उसके सिर्फ एक दिन बाद इजराइल के पास 5 अरब कंट्रीज ने इजराइल पर हमला कर दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इजराइल ने अमेरिका और ब्रिटिश की मदद से इन बड़े बड़े अरब कंट्रीज को क्रश कर दिया, बल्कि इस जंग से इजराइल का साइज और भी बढ़ गया, और जो हिस्सा यूएन ने मुसलमानों को देने का वादा किया था, वो भी मुसलमानों के हाथ से निकल गया। अब इजराइल के लिए फलस्तीन में सिर्फ एक ही मसला था कि अभी भी फलस्तीन में मुसलमानों की आबादी यहूदियों से डबल थी। इसीलिए इजराइल के बनते ही उन्होंने अपना सबसे पहला काम ये किया कि वो फलस्तीनियों को, जो यहाँ पर 1000 साल से आबाद थे, हमेशा के लिए फलस्तीन से निकालने लगा। इजराइल ने फलस्तीनियों की बड़ी बड़ी सिटीज और 500 विलेजेस तबाह कर दिए, और जो मुसलमान इजराइल के जुल्म के बाद भी फलस्तीन छोड़कर नहीं जा रहे थे, कहा जाता है इजराइल ने उनके पानी के कुओं और पाइपों में जहर मिलाकर उन सबको मार डाला। और इस तरह एक ही साल में 8 लाख फलस्तीनी मुसलमान फलस्तीन को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, और इन फलस्तीनियों के खाली घरों को भरने के लिए पूरी दुनिया से 7 लाख यहूदी इजराइल की तरफ आए, जिससे फलस्तीन में यहूदियों की आबादी 60 और 70% तक चली गई। और आज तक इजराइल इसी स्ट्रेटेजी को बार बार यूज करता है। हर कुछ सालों बाद इजराइल कोई न कोई बहाना बनाकर Barbarism and civilization. फलस्तीनियों को फलस्तीन से निकालता रहता है, ताकि फलस्तीन से मुसलमानों का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहूदी ज़ायनिस्ट की हुकूमत है। सब्सक्राइब। ये वही पूरी कंप्लीट जो है ये है हिस्ट्री। और मैं सोच रहा था और पीछे जाए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के समय के बाद से दिखाए, या फिर मिस्र भी दिखाए, और मूसा अलैहिस्सलाम वो उसका भी लिंक दिखाते अगर ये यहूदी के साथ, तो और समझ में आता है कि यहूदी कैसे आए, ठीक है। लेकिन यहाँ से इन्होंने दिखाया कि वो पूरा जो इजराइल कैसे बना उसकी इतिहास था। वो जैसे ही हिटलर जो आया, ठीक है, उसका मतलब उन्होंने दिखाया कि वो यहूदियों को मार भी रहे थे, उसके बाद भी उनकी कंट्री जो उनको सपोर्ट करी थी वो, तो अगर मैं कांग्रेस के टाइम पे हुआ होता ना, तो मतलब मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता कि कोई अपने जो नेता से इतना प्यार करता है कि लोगों के साथ वो बुरा भी करे तो भी सपोर्ट कर रहे हैं लोग। हम नहीं समझ पाते इस बात को, क्योंकि 14 से पहले तो हम वो देख रहे थे। लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ कि लोग, नेता कुछ भी करे, अब लोग उसको सपोर्ट करेंगे। बस ये कि हमारे धर्म के साथ मत करो, दूसरों के साथ कर रहे हो कर दे रहा हूँ, हमको कोई मतलब नहीं है। तो अब मैं समझ रहा हूँ, अच्छा ये अब हमारे करंट टाइम में ये हो रहा है, तो पहले क्या क्या इवेंट हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहूदियों का था, मतलब मेरे को लग रहा था चलो भाई उन्होंने अपने जो है पैसे वैसे कमाए, उसे जमीन खरीद ली, लेकिन उन्होंने बताया कि मुसलमानों को जो भगाए उन्होंने मार मार के, और अभी तक भी ये कर रहा है कि उनके घरों पे फिर बाहर से ला के यहूदियों को भर। ये गलत बात है, और वो तो बदला लिया जाएगा उस बात का। गलत है ये बात, ये कितनी गलत बात है। मतलब एक है भाई चलो जमीन खरीद ली तुमने, वो ठीक है, लेकिन उसके बाद ये नहीं है ना पूरा ही मतलब वो करोगे जो रह रहे हैं, अपनी जो जमीन पे रह रहा है, अपनी पुरखों की जमीन, वो अपना घर कैसे अटैचमेंट होते हैं, कैसे छोड़ एक अपना घर कोई कैसे छोड़ देगा। ये तो ये मेन मुद्दा ये है, ठीक है। तो ठीक नहीं, और कुछ आप बताना चाहो इस पे बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तो हमको समझ में आ गया पूरा कि क्यों हो रहा है और क्यों जब से अब तक लड़ाई हो रही है इस बात पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट, बहुत तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। लाइक सब्सक्राइब, बाय बाय।